دوسرا باب عورت اور خلیل جبران۔ سوال: خلیل جبران کی کتاب پیغمبر میں ایک عورت مصطفیٰ سے درد کے بارے میں سوال کرتی ہے، کیا آپ درج ذیل اقتباس پر تبصرہ کریں گے؟ اور ایک عورت نے کہا، ہمیں درد کے بارے میں بتاؤ۔ اور مصطفیٰ نے کہا، تمہارا درد اس خول کا ٹوٹنا ہے جس نے تمہاری آگہی کو محصور کر رکھا ہے۔ جس طرح پھل کا خول ضرور ٹوٹنا چاہیے تاکہ اس کا دل سورج کے روبرو ہو سکے، اس طرح تمہیں درد کو ضرور جاننا چاہیے۔ اور کیا تم اپنے دل کو اپنی زندگی کے روز رونما ہوتے معجزوں پر حیران رکھ سکتے ہو؟ تمہارا درد تمہاری مسرت سے کم حیران کن نہیں دکھائی دے گا، اور تم اپنے دل کے موسموں کو قبول کرو گے جیسا کہ تم اپنے کھیتوں پر آنے والے موسموں کو قبول کرتے ہو، اور تم اپنے دکھ کے موسم میں سرما کو متانت سے دیکھو گے۔ تمہارا بیشتر درد خود انتخاب کردہ ہے، یہ تلخ جرح ہے جس کے ذریعے تمہارے اندر کا معالج تمہاری بیمار انا کو صحت دیتا ہے۔ پس معالج پر بھروسہ کرو اور اس کی دی ہوئی دوائی کو خاموشی اور سکون سے پی لو، کیونکہ اس کا ہاتھ بھاری اور سخت تو ہے، مگر نہ دکھائی دینے والی ہستی کا نازک ہاتھ اس کا رہنما ہے۔ اور جو پیالہ وہ لایا ہے تمہارے ہونٹ جلاتا ہے، تاہم اسے کوزہ گر نے خود اسی مٹی سے بنایا جسے اس نے اپنے مقدس آنسوؤں سے گوندھا تھا۔ جواب: ایسا دکھائی پڑتا ہے کہ یہ بہت دشوار ہے خلیل جبران جیسے رتبے کے آدمی کے لیے بھی کہ گہرائی تک موجود مردانہ شاونیت پسندانہ رجحان کو فراموش کر دے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی باتیں ایک اعتبار سے تو درست ہیں، تاہم ان میں ایک نہایت ضروری جوہری شے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ بھول جاتا ہے کہ سوال ایک عورت نے دریافت کیا ہے، اور اس کا سوال بہت عام سا ہے۔ مرد اور عورت دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تاہم سچ یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں جس درد اور ابتلا سے گزر چکی ہیں، وہ اس درد سے 1000 گنا زیادہ ہے جس سے کہ مرد شناسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں مصطفیٰ سوال کا جواب تو دے رہا ہے، مگر سوال کرنے والی کو جواب نہیں دے رہا، اور جب تک سوال کرنے والی کو جواب نہیں دیا جاتا، جواب سطحی رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ دکھائی پڑتا ہو۔ یہ جواب عالمانہ سا، فلسفیانہ سا دکھائی پڑتا ہے۔ اس میں مرد کے عورت کے ساتھ سلوک کے حوالے سے کوئی بصیرت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک دن کا سوال نہیں ہے بلکہ ہزاروں برسوں کا ہے۔ اس نے تو اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کے برعکس وہ وہی کچھ کرتا ہے جو مذہبی پیشوا اور سیاستداں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، دلاسے دیتے ہوئے، خوبصورت الفاظ کے پیچھے۔ دلاسے کے سوا کچھ بھی تو نہیں، اور دلاسا سچ کا متبادل تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ایک عورت نے کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اس پورے ہجوم میں سے کسی مرد نے درد کے بارے میں سوال دریافت نہیں کیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بات بہت متعلقہ ہے کہ ایک عورت سوال دریافت کرتی ہے، ہمیں درد کے بارے میں بتاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف عورت ہی یہ جانتی ہے کہ وہ کتنے زخم جسم و جاں پہ کھائے ہوئے ہے، کس قدر غلامی جسمانی، ذہنی اور روحانی وہ بھوگ چکی ہے اور ہنوز بھوگ رہی ہے۔ عورت کے وجود کے عین قلب کو زخمایا جا رہا ہے۔ کوئی مرد نہیں جانتا کہ درد تم میں کتنا گہرا اتر سکتا ہے، اور تمہارے وقار کو، تمہاری عزت کو، عین تمہاری انسانیت کو برباد کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، تمہارا درد اس خول کا ٹوٹنا ہے جس نے تمہاری آگہی کو محصور کر رکھا ہے۔ ایک بے حد عامیانہ بیان ہے، اتنا سطحی کہ مجھے کبھی کبھار خلیل جبران پر شرم آنے لگتی ہے۔ کوئی بھی احمق ایسی بات کر سکتا ہے۔ خلیل جبران کا یہ کہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، تمہارا درد اس خول کا ٹوٹنا ہے جس نے تمہاری آگہی کو محصور کر رکھا ہے۔ یہ تو ایک بے حد سادہ اور عمومی سا بیان ہے۔ جس طرح پھول کا خول ضرور ٹوٹنا چاہیے تاکہ اس کا دل سورج کے روبرو ہو سکے، اس طرح تمہیں درد کو ضرور جاننا چاہیے۔ میں اس بیان سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ اس نظریے کی تائید کر رہا ہے کہ تمہیں درد کے تجربے سے گزرنا چاہیے۔ یہ ایک عامیانہ بات ہے، صداقت نہیں ہے۔ یہ تو انتہائی عام سی بات ہے۔
बीज को ज़बरदस्त इब्तला से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब तक बीज अपनी इब्तला में मरता नहीं है दरख्त कभी पैदा नहीं होता, और ज़बरदस्त पत्ते पत्तियाँ और फूलों का हुस्न कभी वजूद में नहीं आता। मगर बीज को कौन याद रखेगा, और गैर मालूम को जन्म देने के लिए उसकी मौत कबूल करने की जुर्रत को। ये बात तो सच होती अगर जो खौल तुम्हारी आगाही को मसूर किए हुए है वो इब्तला से गुजरता, टूट गिरता, तुम्हारी आगाही को आज़ादी देता, तब एक यकीनी दर्द होता। मगर खौल है क्या? शायर इस तरह मसलूब होने से बच निकलते हैं। उसे वाज़े करना चाहिए ताकि खौल क्या है। तुम्हारा सारा इल्म, तुम्हारी जहन साजी, तुम्हारी नश्व नुमा का सारा अमल, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा मुआशरा और तहज़ीब, ये सब बताते हैं वो खौल जो तुम्हें और तुम्हारी आगाही को मुकीद रखता है। मगर उसने खौल से क्या मुराद लिया है, इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। गौतम बुद्ध एक मर्द है, उसके अजीम चेले महाकीशप, सिरिपत, मोगलियान सब मर्द हैं। क्या उधर कोई एक भी औरत ऐसी नहीं थी जिसे ऐसे शऊर तक तरक्की दी जा सकती? गौतम बुद्ध खुद औरत को चेली बनाने से इनकार कर रहा था, गोया वो नौ इंसान का हिस्सा ना हो बल्कि किसी नेम इंसानी नौ से ताल्लुक़ रखती हो। उनका क्या तरद्दुद किया जाए, उन्हें पहले मर्दानगी हासिल करने दो। गौतम बुद्ध का बयान यह है कि मर्द एक चौक है जहाँ से तुम किसी भी रास्ते पर जा सकते हो, ज्ञान की तरफ, मुतलक आज़ादी की तरफ। ताहम औरत का जिक्र भी नहीं किया। वो चौक नहीं है बल्कि वो तो महज एक तारीख गली है जहाँ किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रोशनियाँ तक नस्ब नहीं की। ये किसी भी तरफ तो नहीं जाती। मर्द एक सुपर हाईवे है, बस पहले औरत को सुपर हाईवे पर आने दो, उसे एक मर्द बनने दो, मर्द के जिस्म में जन्म लेने दो, तब उसके ज्ञानी होने का कुछ इम्कान है। मुस्तफ़ा कहता है, इस तरह तुम्हें दर्द को ज़रूर जानना चाहिए, मगर किस लिए? अगर औरत ज्ञानी नहीं बन सकती तो उसे दर्द क्यों सहना चाहिए? वो सोना तो नहीं है कि आग में जलकर खालिस हो जाए। और क्या तुम अपने दिल को अपनी ज़िंदगी के रोज़ रोनुमा होते मौजज़ों पर हैरान रख सकते हो? तुम्हारा दर्द तुम्हारी मुसरत से कम हैरान कुन नहीं दिखाई देगा। ये सच है, मगर बाज़ औक़ात सच बहुत ख़तरनाक हो सकता है, एक दोधारी तलवार बन सकता है। एक तरफ तो ये तहफ़्फ़ुज़ देता है, दूसरी तरफ ये बर्बाद कर देता है। ये सच है कि अगर तुम अपनी आंखों में हैरत भरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दर्द भी अपना एक मज़ा रखता है, अपना मोजज़ा, अपनी मुसरत। ये ख़ुद मुसरत से कम हैरान कुन नहीं है। ताहम अनोखी हकीकत तो ये है कि औरत बच्चे से ज़्यादा मुशाबे होती है, मर्द की निस्बत हैरत से ज़्यादा मामूर। मर्द हमेशा इल्म के पीछे होता है, और इल्म क्या है? इल्म हैरत से निजात पाने का सिर्फ़ एक वसीला है। पूरी साइंस क्या है? हस्ती के इसरार को ख़त्म करने की कोशिश, और लफ्ज़ साइंस का मतलब है इल्म। और ये एक इंतहाई सादा हकीकत है कि जितना ज़्यादा तुम जानते हो उतना ही कम तुम हैरत करते हो। जब तुम उम्र में बड़े हो जाते हो तो तुम हैरत की हसासियत खो देते हो, तुम ज़्यादा बेहिस हो जाते हो। ताहम इसका सबब ये होता है कि अब तुम हर चीज़ को जानते होते हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, मगर अब तुम्हारा ज़हन मुस्तार इल्म से भरा हुआ है, और तुमने कभी सोचा नहीं कि उसके नीचे कुछ नहीं है सिवाय तारीकी और लाइल्मी के। मुस्तफ़ा इस हकीकत को बयान नहीं करता कि मर्द की निस्बत औरतें हमेशा बच्चे से ज़्यादा मुशाबे होती हैं। ये उनके हुस्न का एक जुज़्व है, उनकी मासूमियत का। वो जानती नहीं है, मर्द ने उन्हें कभी कुछ जानने की इजाज़त नहीं दी। वो मामूली बातों को जानती है, घरदारी संभालने, खाने पकाने, बच्चों और शोहर की देखभाल के बारे में। ताहम ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें छुपाया जा सकता हो। ये कोई अजीम इल्म नहीं है, इसे बहुत ही आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। यही वजह है कि जब कोई औरत मुझे सुनने आई है, उसने मुझे ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा कुर्बत से, ज़्यादा मोहब्बत से सुना है। ताहम जब कोई मर्द पहली मर्तबा मुझे सुनने आता है तो वो बहुत चौकन्ना, मुहतात और खौफज़दा होता है कि अगर उसके इल्म ने साथ नहीं दिया तो वो मुतासिर भी हो सकता है, उसे ठेस भी लग सकती है। या अगर वो बहुत चालाक हो तो जो कुछ कहा जाता है वो उसकी ताबीर अपने इल्म के मुताबिक करता है, और वो कहेगा मैं तो ये सब जानता हूँ, कोई बात भी तो नई नहीं है। ये अपनी अना को महफूज रखने का एक इक़दाम होता है, सख्त खौल को महफूज रखने की एक तदबीर। और जब तक ये खौल नहीं टूटता और तुम खुद को किसी बच्चे की तरह हैरत करता नहीं पाते, तुम्हारे इस खला में होने का कोई इम्कान नहीं है, जिसे हम हमेशा रूह के तौर पर, ऐन तुम्हारी हस्ती के तौर पर जानते आए हैं।
मेरा दुनिया भर का तजर्बा यही है कि औरत सुनती है और तुम उसकी आंखों में हैरत की चमक देख सकते हो, और हैरत सत्य ही नहीं होती, उसकी जड़ें उसके दिल में होती हैं। ताहम खलील जिब्रान इस हकीकत को बयान नहीं करता। हालांकि सवाल एक औरत दरियाफ्त करती है। दरहकीकत मर्द इस कदर बुज़दिल है कि वो सवालात पूछने से भी डरता है, क्योंकि तुम्हारा सवाल तुम्हारी जहालत को साबित करता है। पैगंबर में दरियाफ्त किए गए सब बेहतरीन सवालात औरतों के दरियाफ्त करता है। मोहब्बत के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, दर्द के बारे में, मुसद्दिका हकीकी सवाल, भगवान के बारे में नहीं, किसी फ़लसफ़ियाना निज़ाम के बारे में नहीं, बल्कि ख़ुद ज़िंदगी के बारे में। हो सकता है वो अजीम सवालात ना दिखाई ना दें, ताहम वो हकीकतन अजीम तरीन सवालात हैं, और जो शख्स इनका जवाब दे सके वो एक नई दुनिया में दाखिल हो जाए। ताहम मुस्तफ़ा यूँ जवाब देता है गोया सवाल किसी ला शख्स नो बॉडी ने XYZ ने पूछा है। वो सवाल करने वाले को जवाब नहीं दे रहा, और मेरा फ़लसफ़ा हमेशा यही रहा है कि असल सवाल तो सवाल पूछने वाला होता है। सवाल ने औरत में क्यों जन्म लिया है और मर्द में क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि औरत ग़ुलामी को भोग चुकी है, औरत तज़लील सह चुकी है, औरत माशी मोहताजी झील चुकी है, और सबसे बढ़कर वो हमल की मुस्तकिल हालत से गुज़र चुकी है। औरत सदियों से दर्द में जी चुकी है। इसके अंदर नश्व नवा पाता हुआ बच्चा उसे खाने नहीं देता, उसे हमेशा मतली का एहसास होता रहता है। बच्चे की पैदाइश औरत की तकरीबन मौत होती है, और जब वो अभी एक हमल से फारिग नहीं हुई होती, शोहर उसे दोबारा हमला करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लगता है जैसे औरत का वाहिद किरदार हजूम पैदा करने की फैक्ट्री बनना ही है। और मर्द का किरदार क्या है? वो औरत के दर्द में हिस्सेदार नहीं बनता, वो नौमा इब्तला से गुज़रती है, वो बच्चे की पैदाइश की अजियत से गुज़रती है। और मर्द क्या करता है? जहाँ तक मर्द का तल्लुक़ है तो वो औरत को सिर्फ़ अपनी शहवत और हवस की आसूदगी के लिए एक शय के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि औरत को क्या नताइज बर्दाश्त करना पड़ेंगे, और इस पर भी वो यही कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर वो हकीकतन औरत से मोहब्बत करता है तो दुनिया की आबादी कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसका लफ्ज़ मोहब्बत बिल्कुल खोखला है। वो तो औरत से तकरीबन जानवरों जैसा बर्ताव करता रहता है। और तुम अपने दिल के मौसमों को कबूल करोगे। बाज़ औक़ात दर्द होता है, कभी कभार मुसर्रत होती है, और कभी कभी कुछ नहीं होता, न दर्द न मुसर्रत। वो कह रहा है अगर तुम अपने दिल के मौसमों को कबूल करते हो जिस तरह तुमने हमेशा अपने खेतों पर गुजरते मौसमों को कबूल किया, सच्ची तौर पर यह बात दुरुस्त है। किसी शय की कबूलियत तुम्हें ख़ास सुकून देती है, एक ख़ास तमानियत। तुम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते, तुम जानते हो कि ये भी गुज़र जाएगा। लेकिन जहाँ तक औरत का ताल्लुक़ है तो एक फ़र्क है, और मुस्तकिल तौर पर एक ही मौसम में जी रही है। दर्द और दर्द उसके मौसम में गर्मा से सरमा में या बरसात में तब्दील नहीं होते। औरत की ज़िंदगी हकीकतन दुश्वार है। उसकी ज़िंदगी में मौजूद दौर में इतनी दुश्वार नहीं है, मगर सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों में। हिंदुस्तान की 80% आबादी देहातों में रहती है, जहां तुम उन हकीकी मुश्किलात का मुशाहिदा कर सकते हो जिनसे औरत गुजरती है। वो सदियों से इन मुश्किलात से गुजर रही है, और मौसम तब्दील नहीं होता। अगर तुम इस हकीकत पर गौर करो तो ये बयान इनकलाब दुश्मन बन जाएगा, ये बयान एक दिलासा बन जाएगा। मर्द की ग़ुलामी को कबूल कर लो, मर्द के तशद्दुद को कबूल कर लो। औरत इस तरह के दर्द से गुजर चुकी है, और मुस्तफ़ा मुकम्मल तौर पर फरामोश कर देता है कि सवाल किसने दरियाफ्त किया। मौसमों की तब्दीलियों को कबूल करना मुमकिन है, मगर 10,000 बरस की ग़ुलामी को कबूल करना मुमकिन नहीं। मौसम तब्दील नहीं होता। औरत को कबूल की नहीं, इनकलाब की ज़रूरत है। मर्द कुराए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा शहवत परस्त जानवर है। हर जानवर का एक ऐसा मौसम होता है जब नर मादा में दिलचस्पी लेने लगता है। बाज़ औक़ात मौसम सिर्फ चंद हफ्ते रहता है, बाज़ औक़ात 1 या 2 माह, और फिर सारा साल वो जिन्स के हवाले से सब कुछ भूल जाते हैं, और अफज़ाइश नस्ल के हवाले से सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि वो कसरत आबादी के मसले से दो चार नहीं है। ये सिर्फ मर्द है जो सारा साल जिनसी रहता है, और अगर वो अमरीकी है तो फिर रात में जिनसी है, सुबह में जिनसी नहीं है। अमरीकी 24 घंटे जिनसी रहते हैं, और तुम औरत को दर्द कबूल करने का कह रहे हो। मैं तुमसे ऐसा दर्द कबूल करने का नहीं कह सकता, दर्द जो कि दूसरे तुम पर थोप देते हैं। तुम्हें एक इनकलाब की ज़रूरत है, और तुम अपने दुख के मौसम सरमा को मतानत से देखोगे
کیوں؟ جب ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں تو ہمیں دیکھنا کیوں چاہیے؟ دیکھا صرف اسے جاتا ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اسے دیکھو جو فطری ہے، اس کے شاہد بنو، مگر یہ شاعرانہ عیاری ہے، خوبصورت الفاظ اور متانت سے دیکھو۔ جو شے فطری ہو اسے متانت سے دیکھو، اور جو ابتلا کسی نے مسلط کی ہو اس کے خلاف انقلاب برپا کرو۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ تمہارا باپ ہو یا ماں، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہو یا پروفیسر، خواہ وہ سرکار ہو یا سماج، انقلاب برپا کر دو۔ جب تک تم اپنے ایک انقلابی روح کی حامل نہیں ہوگی، تم زندہ ہونے کی حقیقی معنوں میں زندہ نہیں ہوگی۔ تمہارا بیشتر درد خود انتخاب کردہ ہے، یہ درست ہے۔ تمہاری سب مصیبتیں، تمہارا سارا درد، اس کا بیشتر دوسروں کا تھوپا ہوا نہیں ہے۔ جو دوسروں کا تھوپا ہوا ہے اس کے خلاف انقلاب برپا کر دو، مگر جو کچھ تم نے خود چنا ہے اسے ترک کر دو۔ دیکھنے کو کوئی ضرورت نہیں، صرف یہی جاننا کافی ہے کہ اسے میں نے خود اپنے اوپر تھوپا ہے۔ اسے پرے پھینک دو، دوسروں کو دیکھنے دو۔ تمہیں اسے پھینکتے ہوئے، تمہیں اسے پرے پھینکتا دیکھ کر شاید وہ سمجھ جائیں مصیبت سہنا کیا ضروری ہے۔ پڑوسی تو اپنے رنج و الم کو پرے پھینک رہے ہیں۔ تمہارا رشک و حسد، تمہارا غصہ، تمہارا لالچ، یہ سب درد کو جنم دیتے ہیں۔ تمہاری خواہشیں سب درد کو پیدا کرتی ہیں، اور یہ خود انتخاب کردہ ہیں۔ یہ تلخ جرح ہے جس کے ذریعے تمہارے اندر کا معالج تمہاری انا کو صحت دیتا ہے۔ وہ ایک بار پھر تمہیں دلاسا دلا رہا ہے، وہ واضح امتیاز نہیں کر رہا۔ ادھر ایسے درد ہوتے ہیں جنہیں دوسروں نے تھوپا ہوتا ہے، ان کے خلاف انقلاب برپا کر دو۔ اور ادھر ایسے درد بھی ہوتے ہیں جو کہ فطری ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرو اور متانت کے ساتھ ان کا مشاہدہ کرو، کیونکہ یہ وہ تلخ دوا ہے جو فطرت تمہارے اندر کا معالج تمہارے بیمار انا کو صحت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پس معالج پر بھروسہ کرو اور اس کی دی ہوئی دعا کو خاموشی اور سکون سے پی لو۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ہدایت معالج کے حوالے سے ہے، تمہارے شوہر کے حوالے سے نہیں، سرکار کے حوالے سے نہیں۔ یہ تم پر درد کو تھوپتے ہیں، تمہیں صحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں کچل دینے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ تم برباد ہوتے ہو، اتنی آسانی سے تم پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، تب تمہاری طرف سے انقلاب کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ پس یاد رکھنا کہ معالج کون ہے۔ فطرت صحت دیتی ہے، وقت صحت دیتا ہے، تم تو بس انتظار کرتے ہو، دیکھتے ہو، مگر بالکل واضح ہو جاؤ کہ فطری کیا ہے اور مصنوعی کیا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بھاری اور سخت تو ہے، مگر نہ دکھائی دینے والی ہستی کا نازک ہاتھ اس کا رہنما ہے۔ جو پیالہ وہ لایا ہے تمہارے ہونٹ چلاتا ہے، تام اسے کوزہ گر نے خود اس مٹی سے بنایا ہے جسے اس نے اپنے مقدس آنسوؤں سے گوندا تھا۔ جو کچھ بھی فطری ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا ممکن نہیں، تو پھر پریشان مت ہو، تب اسے صبر شکر کے ساتھ قبول کرو۔ یہ الوہی ہستی کا دکھائی نہ دینے والا ہاتھ ہے جو تمہیں صحت دینا چاہتی ہے، جو تمہیں شعور کی ایک اعلیٰ تر سطح پر لانے کی خواہش مند ہے۔ لیکن جو کچھ بھی غیر فطری ہے، غلامی کی کسی بھی صورت کو عمل میں لانا تمہاری روح کو برباد کرنا ہے۔ غلام بن کر جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ سوال: میں اپنے اندر عورتوں پر جبر کرنے والے، ان کے ساتھ زنا کرنے والے یا انہیں قتل کرنے والے مردوں کے خلاف گہرا انتقام سے لبریز سرد غصہ محسوس کرتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کئی جنموں سے اس غصے کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ برائے مہربانی اس بوڑھی جادوگرنی کو بے نقاب کرنے اور قابو میں لانے میں میری مدد کیجیے۔ جواب: اس حوالے سے پہلی بات واضح کرنے والی یہ ہے کہ یہ عیسائیت ہے جس نے لفظ جادوگرنی کی مذمت کی ہے، وگرنہ یہ تو انتہائی موقر لفظوں میں سے ایک ہے، اتنا ہی موقر جتنا کہ مجذوب۔ ایک دانا مرد اس لفظ کا سادہ سا مطلب ہے، دانا عورت، دانا مرد کے مترادف۔ لیکن وسطی زمانے میں عیسائیت کو ایک خطرے کا سامنا تھا۔ ایسی عورتیں ہزاروں کی تعداد میں تھیں جو کہ بشپوں اور کارڈینلوں اور پوپ سے بہت زیادہ دانا تھی۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کی قلب ماہیت کا فن جانتی تھی۔ ان کے سارے فلسفے کی اساس محبت اور جنسی توانائی کی قلب ماہیت تھی، اور ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ آسانی سے ایسا کر سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایک ماں ہے اور ہمیشہ ماں رہتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ننھی سی بچی بھی ممتا کی صفت کی حامل ہوتی ہے۔ ممتا کی صفت ایسی صفت نہیں ہے جس کا عمر سے کوئی تعلق ہو، یہ تو نسائیت کا ایک جزو ہوتی ہے، اور قلب ماہیت کو ایک بہت محبت امیز فضا کی ضرورت ہوتی ہے، توانائیوں کی ایک بہت پیار بھری تبدیلی۔ عیسائیت اسے اپنا مقابل سمجھتی
थी। ईसाइयत के पास उसके मुकाबले में पेश करने को कुछ नहीं। तमाम ईसाइयत इक़्तिदार में थी। उस ज़माने में भी ये मर्द की दुनिया थी और उन्होंने तमाम जादूगरनियों को फना करने का फ़ैसला किया। तमाम ये सवाल ये था कि उन्हें किस तरह फना किया जाए। यह किसी एक औरत को कत्ल करने का सवाल नहीं था, बल्कि हज़ारों औरतों को हलाक करने का मसला था। और ईसाई ज़हन के मुताबिक, ईसाई इलाहियात के मुताबिक, जादूगरनी के मानी को तब्दील कर दिया गया। जादूगरनी वो औरत होती है जिसके शैतान के साथ जिनसी तल्लुकात होते हैं। तुम किसी और औरत के साथ शैतान के जिनसी तल्लुकात के बारे में नहीं सुनते हो। या तो शैतान एक ईसाई राहब, एक मुजर्रद बन गया है, या शैतान के साथ क्या बीती। हज़ारों औरतों के साथ जिनसी तल्लुकात रखने वाला कौन था, जबकि बेशतर औरतें बूढ़ी थीं। ये बात मंतकी नहीं लगती। जब नौजवान और ख़ूबसूरत औरतें दस्तयाब थीं तो शैतान बहुत बूढ़ी औरतों की तरफ क्यों गया। ताहम जादूगरनी बनने के लिए तवील तरबियत से, तवील डिसिप्लिन से, लंबे तजर्बे से गुजरना होता है। बस जब तक एक औरत जादूगरनी एक दाना औरत बनती व बूढ़ी हो गई होती, उस दानाई इस कीमिया को पाने के लिए हर शय कुर्बान कर चुकी होती। उन्होंने अपनी बेचारी बूढ़ी औरतों को यह कहने पर मजबूर किया कि उन्हें शैतान के साथ जिनसी अमल किया। उनमें बहुत सी ने सख्त मुज़ाहमत की, मगर तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया। उन्होंने उन औरतों पर नहायत गलीज़ तरीके से तशद्दुद किया, सिर्फ़ एक बात के लिए कि वो इतराफ़ कर लें। वो औरतें ये कहने की कोशिश करती रहीं कि उनका शैतान से कोई तल्लुक़ नहीं है और इतराफ़ करने को कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर कान नहीं धरे। वो उन पर तशद्दुद करते रहे। अगर तुम किसी पर तशद्दुद करते हो तो तुम उससे कुछ भी इतराफ़ करवा सकते हो। एक मकाम ऐसा आता है कि वो महसूस करता है कि रोज़ाना तशद्दुद से गैर ज़रूरी तौर पर गुज़रने से बेहतर यही है कि इतराफ़ कर लिया जाए, और ये तशद्दुद सारी ज़िंदगी जारी रह सकता है। जब एक औरत ने इतराफ़ कर लिया कि वो जादूगरनी और शैतान के साथ उसके जिनसी तल्लुकात रहे हैं, तो उस पर तशद्दुद रोक दिया गया और तब उसे एक अदालत के सामने पेश किया गया, पोप की बनाई हुई एक खुसूसी अदालत। और अब उसे अदालत के सामने इतराफ़ करना था, और उसने एक बार फिर अदालत के सामने इतराफ़ किया। अदालत को उसे सज़ा देने का अख्तियार था, क्योंकि ईसाइयत की निगाहों में यह बहुत बड़ा जुर्म है। हकीकत में अगर किसी औरत के शैतान के साथ जिनसी ताल्लुकात हों भी तो किसी शख्स का उससे कोई सरोकार नहीं, और ये जुर्म नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, और शैतान ने कभी किसी थाने जाकर रपट दर्ज नहीं करवाई। वो औरत ख़तरनाक है। ईसाइयत किस अख्तियार के तहत उन औरतों को जला रही थी? वाहिद सज़ा ज़िंदा जला दिया जाना था, ताकि कोई दूसरी औरत जादूगरनी बनने की जुर्रत न करे। उन्होंने हज़ारों औरतों को ज़िंदा जला दिया और न वो इंसान के अच्छे खासे हिस्सों को फना कर डाला। और जिस दानिश की वो औरतें हामिल थीं, उनकी किताबें, उनके तरीके, उनकी मर्द की कल्ब माहियत की तकनीकें, मर्द की तवानाई की कल्ब माहियत की तकनीकें सब बर्बाद कर दी गई। मत सोचो कि जादूगरनी कोई बुरा लफ्ज़ है। ये पोप से ज़्यादा मुक्कर लफ्ज़ है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पोप ऐसा इंसान नहीं है जिसे दानिशमंद कहा जा सके। वो सिर्फ रट्टू तोते होते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा मुमकिन है इसका तुम्हारे साबका जन्म से ताल्लुक़ हो और ज़ख्म इतना गहरा हो कि तुम्हारे लाशऊर में मौजूद उसकी याद तुम्हें मुसलसल सताती हो, और ये मर्दों से नफ़रत को पैदा करती है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे मर्दों ने किया है। बस ये एक सादा सा रब्त है, लेकिन इस रब्त को तर्क करना होगा। ये जुर्म मर्दों ने नहीं किया, इसे ईसाइयों ने किया, और ईसाइयों ने बहुत से जराइम का इर्तिकाब किया है, और वो इनका इर्तिकाब किए जा रहे हैं। ये नाकाबिल यकीन है, और वो सच के बारे में बोले जा रहे हैं, खुदावंद के बारे में बोले जा रहे हैं, और झूठ बोलते हुए। और जो मजहबी लोग हैं जो दुनिया के हर तरह से फरेब देने की, इंसानी ज़हन को धोखा देने की, गलीज़ झूठों से आलूदा करने की कोशिश किए जा रहे हैं। बस इस तरह से मर्द की मुखालिफ मत बनो। सिर्फ ईसाइयत के मुजालिम की मुखालफत काफ़ी है। ईसाइयत 2000 साल से मज़हब के नाम पर, खुदा के नाम पर, यसू के नाम पर, कौम के नाम पर लोगों को कत्ल करती आई है। बस इसकी मजम्मत करना बिल्कुल दुरुस्त है। ताहम हर मर्द ईसाई नहीं है। ताहम ज़्यादा वजाहत के साथ समझने के लिए तनवीवी अमल से गुज़रना बेहतर होगा। शायद तुम्हें याद हो कि जादूगरनियों की तकनीकें क्या थीं, वो किस तरह काम करती थी, वो किस तरह लोगों को तब्दील किया करती थी। उसकी वजह यह है कि जब तक वो ईसाइयत के लिए ख़तरा नहीं होती, ईसाइयत उन्हें कत्ल नहीं करती। ये एक हकीकी ख़तरा है, क्योंकि मुकाबले में ईसाइयत के पास पेश करने को कुछ नहीं है।